Hello students. In the previous section, we have studied about the five kingdom classification with Monera in detail. Now, in this section, we will learn about the kingdom Protista. These kingdoms were given by R.H. Whittaker, in which he classified all the living organisms in five categories that were Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. In Monera, we have seen that all the prokaryotes with unicellular animals were included, which generally includes bacteria. Now, in kingdom Protista, we also include single-celled animal, but instead of prokaryotes, they are eukaryotes. यहाँ पर जो एनिमल अपन इंक्लूड करते हैं वो सिंगल सेल के साथ यूकैरियोटिक होते हैं. यूकैरियोटिक होने के कारण दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. They are generally aquatic in nature and some are parasitic also. इनके बारे में सबसे पहले फर्स्ट प्रपोजल was given by Ernst Haeckel in the year 1866. It is believed that Protista act as a connecting link between the Monera and the other multicellular kingdoms like fungi, plantae and Animalia. ये connecting link का काम करती है. Kingdom Protista includes some categories such as dinoflagellate, chrysophytes, euglenoids, slime molds and protozoans. Some important features of Protista are they shows variety of nutrition. इनमें अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल dinoflagellates are photosynthetic. Some animals are holozoic, for example protozoans. Some are saprophytic, such as slime molds. Some are parasitic, such as entamoeba. Some are symbiotic, such as zooflagellates. Penocytosis, as in case of amoeba. Penocytosis means they are taking their nutrition in the form of liquid. Now, for locomotion, these protistans have locomotory organ in the form of cilia or flagella. We have seen the difference between cilia and flagella, that flagella are long whereas cilia are very short. Flagella are less in number, cilia are more in number. Reproduction in Protista occurs by both asexual as well as sexual means. They respire generally by aerobic and anaerobic respiration both. If we see the major group of Protista, then we can divide the animals in three categories. Photosynthetic protistans, which include algae, then slime molds, which are consumer decomposer protistan. Then the third category consists of protozoan protist. In protozoan protist, on the basis of locomotory organ, we can further classify it in four categories, that is amoeboid, flagellated, सीलिएटेड एंड प्रोटोजोन. लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर हम प्रोटोजोआ वाले जो प्रोटिस्टियन होते हैं उनको चार कैटेगरीज में वापस डिवाइड कर सकते हैं, जो कि अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन है. नाउ वी विल लुक फॉर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इज द फर्स्ट मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा. नाम से ही पता चल रहा है फोटोसिंथेटिक है, दैट मीन्स दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. इनमें जो एनिमल्स आते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्राइसोफाइट्स एंड डायएटम्स. क्राइसोफाइट्स जो है उसमें डायएटम्स और गोल्डन एल्गी आती है. अब सबसे पहले हम डायएटम्स को देखेंगे. डायएटम्स जो होते हैं ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, मॉइस्ट सब तरह के एनवायरनमेंट में मिलने वाले एनिमल्स हैं. दे आर वेरी टाइनी माइक्रोब्स which passively drift in the water. इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन. चीफ प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ टू हाफ. दो सिमिलर हाफ, जिस तरह से सोप बॉक्स होता है उस तरह से ये दो सिमिलर हाफ से मिलकर के बनती है, जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सिलिका होता है. तो बॉडी वॉल ऑफ डायएटम इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इम्प्रीग्नेटेड विथ सिलिका. दीज एनिमल्स pile up at the bottom of the earth and form the big heaps called diatomaceous earth.
ये एनिमल एक के ऊपर एक जमा होकर के और पाइल बना देते हैं, एक लंबी लाइन बना देते हैं, लाइन की तरह बना देते हैं, जिसे बोला जाता है डायएटोमीसियस अर्थ। डायएटोमीसियस अर्थ बोलने का कारण ये है कि इनकी जो सेल वॉल है वो दो सिमिलर ओवरलैपिंग हाफ से मिलकर के बनती है। जिस तरह से सोप बॉक्स में दो अपर एंड लोअर पार्ट होते हैं, तो अपर पार्ट को बोला जाता है इसमें अपर एपिथीका और लोअर पार्ट को बोला जाता है लोअर एपिथीका। जब डायएटम्स व्हेन नो मोर देन दे आर लेफ्ट विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका। इनकी डेथ के बाद में सेल वॉल जो होती है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, वो डिपॉजिट होकर अक्यूमुलेट होती रहती है कई सालों तक, और तब वो बना देती है डायएटोमीसियस अर्थ। ये बहुत ग्रिटी होती है, बहुत चिकनी होती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड अदर्स। इट डज नॉट डिकम्पोज ईजिली। डेड डायएटम्स जो होते हैं दे लीव द रेजिड्यू इन ह्यूज अमाउंट एट द बॉटम ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट एंड फॉर्म द हीप। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है डायएटोमीसियस अर्थ का बनना। और डायएटोमीसियस अर्थ के बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, और ये डिग्रेड नहीं होता है, और काफ़ी टाइम तक ये अर्थ पर उस बॉटम ऑफ द ओशन में पड़ा रहता है, और उसके कारण से इट गेट पाइल्ड अप एंड फॉर्म द डायएटोमीसियस अर्थ। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो क्राइसोफाइट्स के बारे में है वो ये कि दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स of the ocean. These diatoms are found in different colors. In them flagella is absent but it is seen in the reproductive state. जब reproductive state में gametes वगैरह बनते हैं तो उनके अंदर zoospores जो होते हैं उनमें flagella present होती है। Chloroplast containing chlorophyll is also present and because of this they can perform photosynthesis. इसीलिए इनको photosynthetic protist में रखा जाता है। जब इनके अंदर photosynthesis से फूड बन जाता है तो that is stored as oil और polysaccharide. Reproduction इनमें asexual and sexual दोनों तरह से देखा जाता है। Asexual में they generally reproduces by binary fission. इकोनॉमिकली ये जो ग्रुप होता है क्राइसोफाइटा में डायएटम्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, दूसरी बात दे आर यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट एंड मेटल्स पॉलिशर। इनमें जो डायएटोमीसियस अर्थ है वो बहुत ग्रिटी होती है जिसके कारण इट इज़ यूज्ड इन मेटल पॉलिशिंग। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। अगर हमें साउंड प्रूफ फोम बनाना होता है तो भी इनका यूज़ किया जाता है। तो इकोनॉमिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड जो ग्रुप होता है ऑफ क्राइसोफाइटा, पहला हमने देखा क्राइसोफाइटा में डायएटम्स, दूसरा है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी जो है ये नाम इनको इनके कलर के कारण दिया गया है। ये एल्गी जनरली गोल्डन होती है अपीयरेंस में, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होती है, फ्रेश वाटर में मिलने वाली है, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि इट एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। इसकी प्रेजेंस जो होती है वो पॉल्यूटेड वाटर की इंडिकेटर है। इसमें भी रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मेथड से होता है। नाउ वी विल सी फॉर डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, इसका मतलब दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। They are multicolored and are generally marine. Marine means found in ocean. इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और अगर प्रेजेंट होती है देन इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेड टाइड का फॉर्मेशन। Relates like Gymnodium when grows in large number in the sea makes the water look red. इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है एक्सेस में जिसके कारण जो सी वाटर होता है वो रेड दिखने लग जाता है और उसे हम रेड टाइड के नाम से जानते हैं। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ दैट दे रिलीज टॉक्सिन्स बाय वेरी सच लार्ज नंबर दैट इट इज़ हार्मफुल फॉर द अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिन्स को ये रिलीज़ करते हैं और इसके कारण जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ होने लग जाती है। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है और अगर प्रेजेंट होती है तो वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है।
इसकी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, जैसे नॉक्टिल्यूका, पायरोसिस्टिस। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये फोस्फोरेसेंट होते हैं और खुद ही लाइट शो करते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये चमक रहे हैं, जिसे बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। डाइनोफ्लैजिलेट, डाई का मतलब होता है टू। इट मीन्स द सेल पोजेस टू फ्लैजिला विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की होती है, जिसे बोला जाता है हेट्रोकॉन्ट। वन फ्लैजिला इज ट्रांसवर्स एंड इज अराइजिंग फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट, आगे एंटीरियर पार्ट से निकलती है, एंड द अदर फ्लैजिलम अराइज इन द वर्टिकल फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। जो वॉल प्लेट है उसके अंदर जो वर्टिकल फरो होती है उसमें से ये निकलती है। तो दो अलग अलग फ्लैजिला के कारण ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें डाइनोफ्लैजिलेट और डाइनोफ्लैजिलेंट में भी हेट्रोकॉन टाइप की फ्लैजिला कहा जाता है। बोथ दीज फ्लैजिला बीट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये मूव करती है। द न्यूक्लियस इज बिगर इन साइज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीजोकैरियन। बड़ा साइज होने के कारण उसे मीजोकैरियन भी बोला जाता है, बट क्रोमोसोम डू नॉट हैव हिस्टोन्स एंड RNA. फिर सेल पोजेस एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनल विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्यूजल, विच सफिशेंटली लुक्स लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरह दिखती है, ऑस्मोरेगुलेटरी होती है फंक्शन में, एंड इज़ नोन एज प्यूजल. Dinoflagellates reproduce asexually through the division or by the formation of zoospore and cyst. Reserve food is stored in the form of starch and oil. Example हम देख सकते हैं जिम्नोडियम जिससे रेड टाइड होती है, नॉक्टिल्यूका जिससे बायोल्यूमिनेसेंस होता है. Next member which is included in photosynthetic protista is euglenoid. Euglenoids live in fresh aquatic habitat, damp soil, stagnant water. Stagnant water means जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पर हमें ये मिलती है. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सबसे पहली बात, दे आर यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट. यूनिसेल्यूलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, बट इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे बोला जाता है पेलिकल, और इस पेलिकल के कारण ही ये फ्लैक्सिबल होते हैं. इनमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेलिकल का कंपोजिशन क्या होता है, इट इज़ रिच इन प्रोटीन, एंड बिकॉज ऑफ दिस लेयर ओनली इट इज़ फ्लैक्सिबल. सेल्यूलोसिक सेल वॉल तो इसमें होती ही नहीं है. Then euglenoids have two flagella, usually one long and one short. एक बड़ी फ्लैजिला होती है और एक छोटी फ्लैजिला होती है. They perform creeping movement by expansion and contraction of their body. Regular इसमें contraction होता है और expansion होता रहता है और इसके कारण से ये movement शो करती है और इस फिनोमिना को बोला जाता है मेटाबॉली. Each cell possess a mouth at its anterior end. आगे की साइड में माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोला जाता है सिस्टोम. यूग्लोनाइड्स आर ऑटोट्रॉफिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट है तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं. अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है देन दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉफ बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म. तो इसमें ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए इसे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है. तो यूग्लिनॉइड शोज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल A एंड B होता है. जब फोटोसिंथेसिस होगा तो रिजर्व फूड मटेरियल भी रहेगा, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैरामिलॉन और पैरामाइलम बॉडी. इसमें रिप्रोडक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से, विच स्टार्ट्स एट द फ्लैजिलर एंड ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन. पाल्मेला स्टेज बनती है एक अनफेवरेबल कंडीशन में. अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इट गोज़ इन द पाल्मेला स्टेज, और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये वापस रिप्रोड्यूस होता है. और रिप्रोडक्शन में भी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है. इट इज़ कंसिडर्ड एज प्लांट एज वेल एज एनिमल. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लांट एनिमल, क्योंकि इसमें प्लांट वाले फीचर्स भी होते हैं और एनिमल वाले फीचर्स भी होते हैं. प्लांट वाले फीचर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट,
एनिमल फीचर की अगर अपन बात करें तो इसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है जो कि सेल्यूलोज की नहीं होती है। हमें पता है कि एनिमल्स में सेल वॉल इज़ एब्सेंट और सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, तो इसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है। और पेलिकल जो है वो इम्पॉर्टेंट बात ये कि प्रोटीन की बनी हुई है, इसलिए हम इसको एनिमल फीचर में डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन प्रेजेंट होता है। तो कुछ कैरेक्टर इसके कहने का मतलब प्लांट से रिजेंबल करते हैं एंड द सम फीचर रिजेंबल विद द एनिमल्स, इसलिए इसे प्लांट एनिमल भी बोला जाता है। तो ओवरऑल यूग्लिनॉइड के जो इंपॉर्टेंट फीचर आते हैं उसमें एक तो प्रेजेंस ऑफ पेलिकल विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, देन इट शोज मेटाबॉली, इट शोज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, then longitudinal binary fission, and it is plant animal. We have completed the first group of protista, that is photosynthetic protista, जिसमें हमने देखा क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनॉइड्स। Now moving to the second group which include consumer decomposer protestin, और इसमें हम देखेंगे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो होता है that are saprophytic protestin. एंटोन डी बेरी ने 1887 में ही रिलेटेड दैम टू द एनिमल, और तब उन्होंने इनके लिए नाम दिया था माइसेटोजोआ। दे आर ऑल्सो नेम्ड एज फंगस एनिमल बिकॉज दे शेयर सम कॉमन कैरेक्टर्स बोथ विथ एनिमल एज वेल एज फंगाई, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टियन फंगाई भी कहा जाता है ड्यू टू देयर प्रोटिस्टियन नेचर। पर अगर हम इसके जनरल फीचर्स को देखें तो दे आर इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस रिच इन डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड, ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड जो होता है, जो डीके ऑर्गेनिक फूड होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। बॉडी इज़ कवर्ड बाय म्यूसिलेज, इनकी जो बॉडी होती है वो म्यूसिलेज जो कि एक जिलेटिनस कंसिस्टेंसी वाला सब्सटेंस होता है उससे कवर्ड रहता है, इसीलिए इसे स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। स्लाइम मतलब चिपचिपा, तो ये म्यूसिलेज के कारण से ही इसे स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक सेल वॉल, दे आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाउएवर द स्पोर्स हैव सेल्यूलोसिक सेल वॉल, जो स्पोर्स है उनमें तो सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, बट जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लोकोमोशन इज डन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, जनरली मूव्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड लाइट। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इसमें सेप्रोफाइटिक होता है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इसलिए इसमें फोटोसिंथेटिक नहीं होगा एंड दैट इज़ वाई वी प्लेस दैम इन कंज्यूमर डीकम्पोजर। रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल। दे आर लाइक प्रोटोजोआ इन द अमीबॉइड प्लाज्मोडियल स्टेज एंड सिमिलर टू ट्रू फंगाई इन स्पोर फॉर्मेशन। प्रोटोजोआ से जो सिमिलैरिटी है वो उनकी प्लाज्मियल स्टेज के कारण है, प्लाज्मोडियल स्टेज के कारण, और फंगाई से इनकी सिमिलैरिटी स्पोर फॉर्मेशन के कारण होती है। दे आर फाउंड एज लिविंग थैलॉइड बॉडी एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। जब इनमें रिप्रोडक्शन करना होता है और अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो थैलॉइड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है और इस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है देन दीज स्पोर्स आर लिबरेटेड, ये स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं और ये प्लाज्मोडियम स्प्रेड हो जाते हैं। इट इज़ बेनिफिशियल बाय कॉजिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसका डीकम्पोजिशन कर देता है, इसलिए ये स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं दे आर बेनिफिशियल। Now the next group of kingdom Protista is protozoan protestian. Protozoan protestian includes all the unicellular protist with animal-like behavior. सबसे पहले इनकी स्टडी करी थी ल्यूविन हॉक ने। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट कैन बी एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासिटिक, किसी भी तरह के ये हो सकते हैं। दे वेरी इन शेप, और इनमें जो लोकोमोशन होता है वो सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया किसी से भी हो सकता है। जनरल बात करें, अगर अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोन को देखें तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर यूनिसेल्युलर एंड वेरी इन शेप विथ डिफरेंट मोड ऑफ लोकोमोशन। न्यूट्रिशन इनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक होता है एंड दे लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। रेस्पिरेशन जो है वो इनकी बॉडी सरफेस से होता है
और रिप्रोडक्शन असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। प्रोटोजोन ग्रुप को लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे वी कैन डिवाइड इट इन 4 कैटेगरीज विच आर अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन। अमीबॉइड फर्स्ट कैटेगरी। These organisms lives in फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, सब तरह के हैबिटेट में रहने वाले हैं। कुछ जो होते हैं जैसे एंट अमीबा वो पैरासिटिक भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में हम अमीबा, एंट अमीबा, हिलोजोन्स, पेलोमेक्सा, इन तरह के एनिमल्स को रख सकते हैं। अगर इनके जनरल फीचर्स हम देखें तो दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जिसे फॉल्स फीट भी बोला जाता है, जैसा कि अमीबा में होता है। इनमें मेन जो लोकोमोटरी ऑर्गन है दैट इज़ स्यूडोपोडिया। बॉडी जो होती है दैट इज़ विदाउट पेरीप्लास्ट, मतलब वो नेकेड होती है। फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन सम डेवलपमेंटल स्टेजेस, सिर्फ इसकी डेवलपमेंटल टाइम में कोई स्टेज हो है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकती है। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है, असेक्सुअल बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, स्पोर्स बर्डिंग से, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिनगैमी। एग्जाम्पल इज अमीबा। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड मीन्स जिन पे फ्लैजिला होती है, ऐसे प्रोटोजोन्स को फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहा जाता है। इट्स मेंबर्स आर फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, और दे कैन बी पैरासिटिक, aquatic और symbiotic. Symbiotic means they are living with other animals and gaining benefit. Locomotion is done by flagella as the name suggests. इनकी बॉडी पर एक कवरिंग होती है जिसे बोला जाता है पेलिकल। न्यूट्रिशन सब तरह का होता है, होलोजोइक जिसमें वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, सेप्रोफाइटिक डेड एंड डीके मैटर से लेते हैं, पैरासिटिक अदर लिविंग होस्ट से ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इसमें सब तरह का होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसकी जगह होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक होता है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। दे कॉज वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़, जैसे ट्रिपेनोजोमा। ट्रिपेनोजोमा एक ऐसा फ्लैजिलेट है जो स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करता है। लेशमानिया, लेशमानिया से काला अजहर जैसी डिजीज़ होती है। जियार्डिया, जियार्डिया से जियार्डियासिस होता है। तो दे आर डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोन्स। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन का मतलब नाम से पता चलता है कि लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें सीलिया होगा। सीलिया आर स्मॉलर देन फ्लैजिला एंड मोर इन नंबर। सच एनिमल्स आर एक्वेटिक, पानी में मिलने वाले एनिमल हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया है। दे हैव द कैविटी विच ओपन्स टू द आउटसाइड, बाहर की तरफ एक कैविटी खुलती है जिसे गिलिट बोला जाता है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। The coordinate movement of rows of cilia causes the water laden with the food to be stirred into the gullet. जब ये सीलिया बीट करते हैं एक रिदमिक मूवमेंट में, तो पानी की करंट के साथ साथ जो वाटर है उसके साथ साथ जो फूड है वो भी गलेट में एंटर करता है। तो मूवमेंट ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर विद द फूड टू एंटर इन द गलेट, और अंदर आने के बाद में इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड। Their body is covered by flexible pellicle. Pellicle is the outermost covering and is flexibility providing. Ciliates have a large macronucleus and a small micronucleus. दो तरह के न्यूक्लियस इसमें मिलते हैं, एक बड़ा जिसे मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं और दूसरा जो रिप्रोडक्शन में काम आता है दैट इज माइक्रोन्यूक्लियस। दे हैव इजेक्टेबल ट्राइकोसिस्ट फॉर डिफेंस। एक स्पेशल सेल्स होती है जो इनके बचाव के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। दीज सेल्स आर नोन एज ट्राइकोसिस्ट। ऑस्मो रेगुलेशन होता है इनमें जिससे अपने प्रेशर को मेंटेन करते हैं। दिस इज़ डन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। रिप्रोडक्शन इज़ बाय असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड। अगर असेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो इसमें बाइनरी फिशन से और बर्डिंग से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय कॉन्जुगेशन।
अनफेवरेबल कंडीशन कभी भी आती है जब मौसम इसके अनुकूल नहीं हो, क्लाइमेटिक कंडीशन इसके फेवर में नहीं होती है, तो दे डेवलप अ कवरिंग अराउंड देमसेल्व इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है देन दे अगेन रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल पैरामीशियम। द फोर्थ कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोन इज स्पोरोजोआ प्रोटोजोन। This group includes organisms which have an infectious spore-like stage in their life cycle. उनकी पूरी लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी आती है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शियस स्पोर-लाइक स्टेज इज प्रेजेंट इन एनी पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का पैरासाइट है। फिर जनरल फीचर्स को हम देखें तो दे आर जनरली एंडोपैरासाइट एंड पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब जिनसे डिजीज़ होती है। इनमें किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं मिलता है, लोकोमोटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑल्सो एब्सेंट। और न्यूट्रिशन इनमें पैरासिटिक होगा। पैरासिटिक मीन्स दे आर डिराइविंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इनकी बॉडी जो होती है वो पेलिकल या क्यूटिकल से कवर्ड होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट एंड दे रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दैट विल बी बाय मल्टीपल फिशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी बाय सिनगैमी। लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 डिफरेंट होस्ट। आधी लाइफ साइकिल एक होस्ट में होती है, आधी दूसरे होस्ट में होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है डाइजेनेटिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम प्लाज्मोडियम को देखें तो इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन द 2 होस्ट, दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग। इस तरह से ओवरऑल जो प्रोटिस्ट है उनको हम 3 ग्रुप्स में स्टडी करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जिसमें हमने क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड्स को देखा। सेकेंड इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टियन जिसमें हमने स्लाइम मोल्ड्स को देखा। देन द थर्ड इज प्रोटोजोन प्रोटिस्टियन जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग हमने 4 कैटेगरीज देखी, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन। दिस इज ऑल अबाउट प्रोटिस्टा।